وہ میرال کے پاس سے تو کھولتا ہوا متنفر ذہن لے کر نکلی تھی، لیکن کمرے کا احاطہ عبور کرتے اعصاب خود بخود ڈھیلے پڑ گئے۔ اس ذہن کی جوڑ توڑ کے بعد آنکھیں نتیجے میں چمک اٹھی تھیں۔ تم نے مجھے بات کرنے کی قسم دی ہے میرال عثمانی۔ کیا بات کرنی ہے؟ اس بات کی نہیں۔ بحران کے روم کے باہر کھڑے ہوتے وہ تصور میں میرال کو مخاطب کرتی سرشاری سے مسکرائی۔ آداب عرض عالی جا، لمحہ استراحت میں مخل ہونے کے لیے معذرت۔ کیا ہم اندر تشریف لانے کی گستاخی کر سکتے ہیں؟ مسکراہٹ ضبط کرے دروازے سے ٹیک لگائے اس نے بیڈ پر مطالعے میں مصروف بحران پر اجازت طلب کم محظوظ کن نگاہیں زیادہ گاڑی۔ گستاخیاں کافی زیادہ کر رہی ہیں آپ آج کل۔ کتاب ایک جانب رکھتے بحران نے مصنوعی خفگی سے گھوری ڈالی تو وہ کھلکھلاتی ہوئی اندر چلی آئی۔ مزہ آ رہا ہے آپ کو؟ آ تو رہا ہے بھائی صاحب، اس نے بلا توقف اعتراف کیا۔ رابی، بحران کا انداز تنبیہی تھا۔ آ رہا ہے تو کہوں گی ہی نا بھائی صاحب، اب جھوٹ تو میں بولتی نہیں، بیڈ مینرز ہوتے ہیں نا۔ اس نے بے چارگی سے ہونٹ لٹکائے۔ اور جو آپ کا سچ ماسا نے سن لیا نا، لگ پتہ جائے گا۔ بحران نے موقع کی نزاکت سمجھانا چاہے۔ کیوں نہیں پتہ لگنا؟ میرے بھائی صاحب نا سب سنبھال لیں گے۔ وہ فخریہ نادیدہ کالر جھاڑ کر دیدے نہ چاہ گئی تو بحران نے تعصب سے سر ہلاتے اس کی پیشانی پر 2 انگلی سے چپت رسید کی۔ آپ کی وجہ سے میں بلا وجہ کے معاملے میں حد سے زیادہ انوالو ہو چکا ہوں، اور مزید کیا چاہتی ہیں آپ؟ بھائی صاحب، یہ بلا وجہ کا معاملہ نہیں ہے۔ وہ فوراً ناک سکوڑتی اعتراض اٹھا گئی تھی۔ ہاں بیٹا، لیکن آپ جانتی ہیں یہاں کے معاملات میں میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوتا ہوں، کیونکہ میں نہیں ہونا چاہتا۔ میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے اپنوں کے ہی سینٹیمنٹس ہرٹ نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے اقدام پر پریشان نہیں تھا، لیکن اس کے ماتھے کے شکن بتا رہے تھے کہ اسے اپنوں کے متنفر ہونے کا ملال ضرور ہے۔ میں جانتی ہوں بھائی صاحب، لیکن آپ بھی مانتے ہیں نا یہ سب غلط ہے۔ خواہ مہرال کی ممانی اسے لے جائے یا یہاں اسے ایک زندہ لاش کی طرح عجیب و غریب روایات کی زنجیروں میں جکڑ کر سانس سانس کا محتاج رکھا جائے۔ اس نے سنجیدہ نگاہیں بحران کے چہرے پر ٹکائی۔ ہاں رابی، لیکن کیا بھائی صاحب؟ آج میرال وہاں کھڑی ہے تو آپ کو بے وجہ لگ رہا ہے، جب کل میں وہاں کھڑی ہوں گی تو آپ کو تب باوجہ لگے گا۔ رابی، دل شکن ضرب المثل پر بحران کی سخت آواز اونچی ہوئی تھی۔ تلخ ہے لیکن سچ ہے، موت حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ رسم صرف اور صرف میرال کے لیے تو نہیں بنائی گئی، بلکہ پورے علاقے پر لاگو ہوتی ہے۔ آج جہاں میرال کھڑی ہے کل کوئی بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ اگر اس جگہ میں کھڑی ہوئی تو آپ مجھے کس طرح؟ رابی شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ درشتگی سے جھڑکتے اس نے کسی آسیب زدہ خیال کو جھٹکتے کھینچ کر بہن کو خود کے ساتھ لگایا۔ وہ فطرتاً جذباتی نہیں تھا، لیکن بہن نے دھڑکنوں کا نظام متزلزل کر دیا تھا۔ بھائی صاحب، نو مور ورڈ رابی، سختی سے ٹوکتے دائیں بازو کا حصار اس کے گرد ڈالتے نرمی سے اس کے گھنے بالوں پر شگرفی لب رکھے تھے اس نے۔ مضراب اس تحفظ اور مان کے مضبوط احساس پر مبہم سا مسکراتی اس کے فراخ سینے پر پیشانی ٹکا گئی۔ آپ کو کچھ بھی کر کے میرال کو انصاف دلانا ہے بھائی صاحب۔ اس کی زندگی کوئی کھلونا نہیں جو لوگ اپنی مرضی سے چابی گھما کر سمت کا تعین کریں۔ اس کی زندگی پر صرف اور صرف اسی کا حق ہے۔ جو اس بیوقوف کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو یہ اس کی خطا نہیں، لیکن اس کا اختیار اسے ہر صورت ملنا چاہیے۔ میزان بھائی صاحب ہمارے درمیان نہیں رہے تو یہ اس کی خطا نہیں ہے، پھر اس پر سزا واجب کیوں ہو؟ آپ دلائیں گے نا بھائی صاحب اسے اس فرسودہ سوچ اور رواج سے آزادی؟ اس کے سینے سے لگی وہ بہت کچھ دکھتے دل سے بول رہی تھی، جسے سنتے ہوئے بحران کی متفکر سوچوں کے پرندے پراگندگی خیالوں کے لامتناہی آسمان میں محو پرواز تھے۔ بدگمان ہم سے کچھ لوگ ہیں تو کیا کریں؟ ہم سے ہر ذہن کے جالے تو نہیں اتارے جاتے۔ خبر دونوں بہنوں کی حویلی کی دہلیز کو چھونے کی دیر تھی۔ وہ دونوں دندناتی ہوئی اپنے نصف بہتر کے ساتھ میدان میں حاضر تھیں۔ داجی کے بیٹھک میں بحران کے متنازع بیان پر پیش طلبی کی گئی تھی۔ مخصوص صوبے پر رعبدارانہ انداز میں ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے داجی ان کے پہلو میں متفکر سی ان کی ملکہ یعنی دی جان، باقی ارد گرد کی کرسیوں پر کروفر سے دونوں بہنیں نشستہ تھیں۔ ایک جانب بیٹے کے اقدام پر نالہ ناظمہ بیگم ان کے ساتھ زوجہ شہراز تھی تو دوسری جانب تنے عضلات سنگ شہباز عثمانی گردن اکڑائے براجمان تھے۔ ان سب کے درمیان معتدل اعصاب کسی کے تھے تو وہ ملزم بحران عثمانی کے۔ آپ نے کس کی اجازت سے بیگم تبسم کے سامنے وہ بیان دیا؟ داجی نے دبدبے بھرے انداز میں سوال داغا۔ میرے بیان میں قابل اعتراض کیا تھا؟ پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا۔ آپ نہیں جانتے؟ جی نہیں۔ آپ سبھی کا مقصد انہیں مناسب جواب دے کر خاموش کروانا تھا جو اس بیان سے ہوا، پھر اس قدر شدید مذمت کیوں؟ مرعوب ہوئے بغیر اس نے اعتماد سے اپنا سوال سامنے رکھا۔
तो सभी ने नापसंदीदगी से पहलू बदला, क्योंकि बरखुरदार दाजी की निगाहों में आने का उम्दा मौका लपकते जफर गिलानी ने लिजाजत भरी इजाजत तलब नजर उन पर डालने के लिए तवक्कुफ लिया तो वहाँ सब मोतदिल देखकर गर्दन को अकड़ाते सिलसिला कलाम जोड़ा, हमारे ख़ानदान में ना तलाक़ें होती हैं ना दूसरी शादियाँ, ये हमारी रिवायात, हमारी बुनियाद है जो बरसों से ऐसे ही चली आ रही है और आगे भी चलेगी, क्योंकि उनके साथ छेड़खानी की कोशिश हवेली की इज्जत और नामूस को खाक में मिला सकती है। हवेलियाँ सिर्फ बुजुर्गों की दुआओं और विरसे से ही शादो आबाद रहती हैं। उनके करोफर से मोतबराना दलील रखने पर वो तहम्मुल से पानी का ग्लास उठाता, उठ खड़ा हुआ। आपकी सारी बातें मान ली, लेकिन एक सवाल है, अगर इजाज़त हो तो। ग्लास उनके मुकाबिल रखते वो बड़े मुअद्दबाना अंदाज में इजाज़त चाह रहा था। अगर यह हादसा मीज़ान की जगह मीज़ान की मनकूहा के साथ होता तो क्या मीज़ान बकिया ज़िंदगी ऐसे ही गुजारता? वो क्यों ऐसे गुजारता? वो मर्द है। समरा उस्मानी सेकंड का तवक्कुफ लिए बगैर चमक के उठी थी, जिस पर बारान के लबों को बेसाख्ता तल्ख मुस्कुराहट ने छुआ, जिसे उसने छुपाने की कोशिश नहीं की थी। वो मर्द है, ये आपकी दलील है पुपोसा? फीका सा अंदाज तासुफ की धुन समेटे हुए था। ये अदालत नहीं है बारान जो यहाँ पर दलील और सबूत की बात होगी। ये घरेलू मामलात हैं, जिसे घर के अंदर तहम्मुल से ना हल किया जाए तो बात पूरे कबाइल तक फैलेगी, जिसके संगीन नताइज हम सभी को बर्दाश्त करना पड़ेंगे। मगरबी आज़ाद मुल्क नहीं है ये। यहाँ पर जीने के लिए समाजी हदूदों कयूद कायदे कानून की पासदारी करना पड़ती है। यहाँ इक़्तिदार पर बने रहने के लिए कुछ कड़वे घूंट भरने पड़ते हैं। ऐसे ही नस्लों से हमारे आबा व अजदाद इस इलाके पर हुकूमत नहीं करते आ रहे। ताकत और रुतबा कुर्बानियाँ और इसार मांगता है। अगर तुम नहीं समझना चाहते उन्हें तो कम अज़ कम समझने तक उलझो भी मत। बड़े बहनोई को मौके का सुनहरा मौका जानकर इस्तेमाल करने के लिए तैयार देख शहबाज उस्मानी ने रसानियत से बेटे को समझाना चाहा। आप ठीक कह रहे हैं बाबा साहब, मैं यहाँ के माहौल से ज़्यादा वाकफियत नहीं रखता। इसलिए नहीं कि मैं यहाँ से दूर रहा, बल्कि इसलिए कि मुझे दिलचस्पी नहीं रही कभी। और रही बात मामले में इन्वॉल्व होने की, तो बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है मेरा कि आज जहाँ वो लड़की खड़ी है, कल उसकी जगह पर मैं अपनी बहन, बेटी या बीवी को नहीं देखना चाहता। बारान, उसके दिल दहलाते अल्फाज पर नाज़मा बेगम ने तड़प कर उसे पुकारा था। दी जान का कलेजा भी मुँह को आया। उसकी आईनादारी पर बाकी सब ने हंकारा भरा, अलबत्ता दाजी की आंखें सुकड़ी। जहाँ खड़ी है से आपकी क्या मुराद है बरखुरदार? कहाँ खड़ी है वो लड़की? क्या परेशानी है उसे? ज़रूरत की हर चीज़ तो मौजूद है उसके पास। कदीर जिलानी ने चुपते अंदाज में सवाल दागा। अगर सिर्फ मादी अशिया आपकी नज़र में ज़िंदगी गुजारने के लिए कारगर मानी जाती हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं माज़रत ख्वाह हूँ। उसने रसान भरी मुस्कुराहट उनकी जानिब उछाली। वो एक बेवा है। बेवा को मज़हब से सादगी का हुक्म है, मज़हब से तो बेवा की दूसरी शादी का भी हुक्म है। वो उस पर वावेला क्यों फिर? तुम? समरा उस्मानी जुलबुलाकर लब दबा गई। आपको किस बात पर असल एतराज़ है बरखुरदार? इस तरह भी अंदाज में हिल रहे दी जान के हाथ पर अपना मजबूत हाथ धरते दाजी ने सबको लब सी देने का इंदिया दिया। हर चीज़ पर। फिर भी बहुत सी बेसिक चीज़ें हैं दाजी जिसका हवेली में इशू बना दिया जाता है। जितना मैंने नोटिस किया, कवि उंगलियों को बाम पेवस करते वो ज़रा सामने को झुका। उन्होंने कलरफुल ड्रेस पहना, मॉम अपसेट हो गई। नीलम ने उन पर परफ्यूम स्प्रे कर दिया, पुप्पो सा बिगड़ गई। लास्ट वीक गर्ल्स ने शादी पर जाने का साथ डिसाइड किया। पहले पुप्पो सा गुस्से हुई, बाद में मॉम ने मिज़राब को थप्पड़ मार दिया। माई प्रॉब्लम इज़ कि अगर वो आपके बेटे की बेवा है भी तो आपकी कैदी नहीं है। ये कैसा बिहेवियर है? मुझे इस बिहेवियर से इशू है, क्योंकि मैं इस बिहेवियर को अपने साथ जुड़ी किसी औरत के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कैंट। और ये मेरी प्रॉब्लम है। एक एक पर से दीदा दलेरी से अपनी मोतरिज़ निगाहें गुजारते उसने अपना एतराज़ खुले अल्फाज में सामने रखा था, जिस पर चंद साथ के लिए तनावज़दा माहौल पर बर्फ़ की भारी सिल जम गई थी, जिसमें से दोबारा ही बहरान ने भारी आवाज़ के ज़रिए दरार डाली थी। और अगर आप लोगों के इस रवैये से मुराद ये है कि अपनी अजीज़ हस्ती को खोने के बाद खुश रहने का हक़ आप खो देते हैं, या मरहूम से आपकी मोहब्बत और दिली वाबस्तगी का सबूत यही है कि आप खुशियों को खुद पर हराम कर दें, तो फिर आज के बाद कोई मुझे शादी के लिए फोर्स नहीं करेगा, क्योंकि बाकी सबका मालूम नहीं, लेकिन मुझे अपने भाई से बेइंतहा मोहब्बत थी, है और रहेगी हमेशा। सर्द लहजे में अपने संगलाख इरादों की एक और दलील सबके सामने रखकर उसने गोया हाजरीन को जलते तंदूर पर बिठा दिया था। ये आप कहाँ की बात को कहाँ से जोड़ रहे हो बेटा? जोहरा बेगम ने फ़ौरन पैंतरा बदलते लहजा शहद आगबीन किया था। मैं जहाँ की बात को वहीं से जोड़ रहा हूँ पुपोसा, क्योंकि इन बातों को ट्विस्ट एंड टर्न्स मैं नहीं देता। वो साफ गोई से बोला था।
था। बात यहाँ आपके बयान की हो रही है जो आपने बिना बड़ों से मशावरत के तबस्सुम बेगम जैसी खातून के सामने रख दिया, जो कोई मौका ज़ाया होने नहीं देती और न जाने देती है। आपकी माँ सा जानती हैं ये। ज़ोहरा बेगम ने शातराना अंदाज में माँ बेटे दोनों को अपनी कश्ती में उतारना चाहा, जिससे आपकी शादी का कोई ताल्लुक नहीं है। समरा उस्मानी ने तड़क कर टुकड़ा लगाया। मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ, मेरे बयान में कबाहत क्या है? अगर आप लोग उन्हें उनकी मुमानी के साथ नहीं भेजना चाहते, दूसरी शादी भी नहीं करवाना चाहते, तो फिर क्या चाहते हैं? क्या वो हवेली में रहेंगी जिस तरह इतने सालों से रह रही हैं? नाज़मा बेगम की आवाज़ ज़ब्त से लग़्ज़िश का शिकार हुई। और कब तक? आखिरी सांस तक। उन्होंने अल्फाज को चबाते अपनी तरफ से मौजू समेट दिया था, जिस पर सभी की गर्दन हिमायत में हिली। अच्छा। इस बात में सर हिलाते उसने जवाब ज़हन में तैयार होने के बावजूद तवक्कुफ़ लिया, जिस पर उसने अपनी उकाबी मुस्तकिल निगाहें गाड़े बैठे दाजी की खूब समझ आ रही थी। ओके, तो फिर आप में से कोई मेरे दिलावर और आर्यान के बिहाफ पर गारंटी ले रहा है या? उसने सादा सवाल में नज़र हाजरीन पर घुमाई। क्या मतलब? सब अचंभे से यकजुबान हुए सिवाय दाजी के। आप लोग कह रहे हैं ना वो अपनी मुमानी के पास भेजी जाएंगी और ना उनकी दूसरी शादी की आपको आपकी रिवायात और परमिशन देती हैं। आप लोग खुद कहते हैं ना कि आइंदा हवेली की बाग दौड़ हम तीनों में से किसी के हाथ में होगी, तो फिर आप में से किसी को तो गारंटी लेना होगी ना कि कल जब ये बाग दौड़ किसी दूसरे के हाथ में जाएगी, तब ये उनके साथ हवेली में वही रवैया इख्तियार किया जाएगा। वो इतनी सेल्फ एंड सिक्योर होंगी, इनकी मादी ज़रूरियात जो फूफा सा के मुताबिक ज़िंदगी जीने के लिए काफ़ी हैं, उन्हें वैसे ही दस्तयाब होते रहेंगे। उसका कसदन सादगी में लपेट कर रखा गया तल्ख सवालों का बहता सिलसिला हाजरीन के दिलों पर गुस्से और इज़्तिराब की गर्म फुहार बनकर बरसा था, जिससे तिल मिलाकर वो पहलू पर पहलू बदलते पेचो ताप खाने लगे थे। तुम कहना क्या चाहते हो? सभी का गम और गुस्से से बुरा हाल था। बरखुरदार कहना चाहते हैं कल हम मर आ गए तो उस बच्ची की जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर उन समेत उनके बकिया दोनों भाइयों ने हवेली की जिम्मेदारी के साथ इस जिम्मेदारी को लेने से इनकार कर दिया, उस सूरत में क्या होगा? क्यों बरखुरदार? दाजी ने तशरीह करते इस्तेज़ाइया नज़र उस पर गाड़ी, जो बिल्कुल शर्मिंदा ना था। मैके में इनका कोई बाप भाई नहीं है इनके लिए स्टैंड लेने के लिए। बाकी इंसान तो परत दर परत दरियाफ्त होता है ना। उसने शाने उचकाए। ख़ानदानी लोग गिरगिट की तरह रंग नहीं बदला करते साहबजादे। शहबाज उस्मानी तप कर गुर्राए। ये कोई दलील नहीं है बाबा साहब, वो जो ज़रा मरूब हुआ हो। मैं किसी दलील सबूत को नहीं मानती। मीराल मेरे मीज़ान की अमानत है। मेरे जीते जी मैं अपने मीज़ान से जुड़ी किसी भी शय को अपनी नज़र से दूर जाने नहीं दूंगी, और अगर किसी को दूर करना हुआ तो मेरी लाश पर से गुजरे। माजरत बाबा साहब। दरुस्त अंदाज में नशिस्त छोड़ती वो उस पर शाकी पुरनुम नज़र डालती निकलती चली गई। बहरान ने तासुफ से माँ की पुश्त को देखा, जिनका दिल वो मर कर भी दुखाना नहीं चाहता था, लेकिन नाज़मा बेगम के पीछे बकिया ख़वातीन ने बुड़बुड़ाते हुए वॉकआउट किया था। अब बस कमरे में मर्द बच गए थे। आप लोग भी जा सकते हैं। दाजी के इशारे पर वो उठने लगा कि दाजी ने उसे बैठने का इशारा किया। तो आप हमारी पुरखों की रिवायात से बगावत करना चाहते हैं बरखुरदार? अपनी लकड़ी को कालीन पर टिकाकर उस पर कोहनी टिकाते उन्होंने स्पाट अंदाज में पूछा। आप उसे बगावत कहते हैं, लेकिन मैं इसे लॉजिकल सा सवाल कहता हूँ। उसका मुअद्दबाना लहजा कहीं से भी मरूबियत के ज़ुमरे में नहीं आता था। बेहतर। मुस्तासिर कुन अंदाज में सर को जुम्बिश देते घुटनों पर जोर डालकर वो खड़े हुए, तो बारान झट से एहतराम में खड़ा होने लगा कि उनके इशारे पर बैठ गया। रिवायतों से बगावत के लिए ना बरखुरदार जिगरा होना पड़ता है। आईनी चट्टान से इरादे और टकरा कर चूर चूर होने तक डटे रहने के बुलंद हौसले होने पड़ते हैं। और सबसे अहम, उसके मजबूत छाने पर दबाव डालते वो मायने केज अंदाज में मुस्कुराए। इसारो कुर्बानी के चूल्हे का ईंधन बनना पड़ता है। खुद अपने मुतबादिल कानून पर चलकर लोगों को एकांत सौंपना पड़ता है। आप में वो जुर्रत, वो हौसला है? दाजी जुमाइनी अंदाज में कई परतों में लिपटा सवाल कर गए थे, जिसका बारान के माथे पर उलझन के अनगिनत बल जवाब थे। फिलवक्त दाजी ज़रूरी कॉल सुनने के लिए बैठक के पिछले दरवाजे से निकल गए थे, जबकि उनके बहुत कुछ जताते हुए अल्फाज और अंदाज का मफहूम समझते की कोशिश करता हुआ बारान अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुआ, जहाँ हॉल में बैठी उसकी फूफियाँ वापस ज़ोरों शोर से दिल की भड़ास निकालने में सरगर्दा हो चुकी थी। यूं तो इरादा उसका साइड से निकल जाने का ही था। गुज़िश्ता 2 दिन से वो हद से ज़्यादा अपने कमगो मिजाज और रिज़र्व तबीयत के खिलाफ वर्जी करता खासा डिस्टर्ब था, और उस वक्त खामोशी और तन्हाई का
मुतमनी था, लेकिन उन दोनों बहनों के एतराज़ात खुद साख्ता मजहबी अहकामात को तोड़ मरोड़ कर बनाए गए असूल व ज़वाबित और उनकी हदबंदियों की दुहाइयाँ उसके उजलत में उठते भारी कदमों की जंजीर बने। किन माशरती असूलों की खिलाफ वर्जी की संगीन नताइज हवेली के लिए परेशानी का बाइस बन सकते हैं फूफो सा? वो स्पाट लहजा और तासुरात भी उनके मुकाबिल था, वही जिन्हें बदलने पर बज़िद हैं आप बेटा, जिनमें आपको सौ कीड़े नज़र आ रहे हैं आज। नहीं, मैं पूछती हूँ, जब हमारे आबा व अजदाद ने ये रिवायात बनाई थी बस ऐसे ही बना दी थी? अकल नहीं था क्या उनके पास? समरा बेगम अच्छेपन का लिबादा उतारती अपनी मखसूस नखुवत ज़दा अंदाज में तंग कर सवाल गोई, फिर क्या वजह हो सकती है उसकी? हमारी गैरत, हमारे ऊंचे शिमले की हुर्मत, और क्या? हम ख़ानदानी लोग हैं, हमारे यहाँ की औरतें बाहया और इशारों कुर्बानी की मूरत होती हैं। एक बार किसी मर्द का नाम उनके साथ जुड़ जाए फिर वो उस पर अपनी आखिरी सांस तक वक्फ कर देती हैं। किसी दूसरे मर्द का ख्याल भी जहन में लाना उनकी वफाशवारी ख़ानदानी औरतों के लिए जहर का प्याला मुंह को लगाने के मुतरादिफ होता है। मगरबी बेहया औरतों की तरह वो लिबास के साथ, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आती है, उन्होंने करेहत आमेज चेहरा बनाते तनफ़ुर से चेहरा एक जानिब झटका जैसे कोई इंतहाई गलीज़ चीज़ सामने आई हो। बात तो आपकी वाकई दुरुस्त है फूफो सा, शर्म व हया का यही मयार होना चाहिए। उसने मुस्बत अंदाज में इत्तफाक किया। बिल्कुल, हम मुसलमान हैं, शर्म व हया की तरगीब हमारा दीन देता है। औरत का जेवर है लाज और हिजाब, लेकिन मगरबी अतवार ने तो हमारे मुआशरे का सत्यानाश ही मार कर रख दिया। समरा उस्मानी की करख्त आवाज़ में रौनत और रुखाई की आमेजिश काफ़ी हद तक शामिल हुई थी। मजहब की खूबियाँ भी उसे कायल न कर सकीं, बस एक ही असूल पे कुर्बान हो गया। जूं ही सुना के चार भी जायज़ हैं बीवियाँ, फ़ौरन वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। वाह, ये मजहबी अहकाम का हवाला पेश कर तो आपने मौकूफ़ को और मजबूत कर दिया। ये मजहबी अहकाम का हवाला पेश करके आपने मौक़िफ़ को और मजबूत कर दिया। उसके लहजे में महसूस की जाने वाली इस्तेहज़ाइया चुभन सिमटी थी। मगरबी ममालिक तो बिलाशुबा हैं ही इन मामलात में पस्तियों का शिकार, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ हमारे लिए मजहब और उसके अहकामात के क्या मायने हैं। उसका सवालिया अंदाज ही कुछ ऐसा था कि जवाब देने की बजाय दोनों बहनों को चुप्पी से लगी। ना सिर्फ उन दोनों को बल्कि वहाँ मौजूद तमाम ही हाज़रीन को, खा वो हवेली के मकीनों या मुलाजमीन, या हवेली के बुलंदो बाला दरो दीवार या आन बान शान से खड़े बुलंदो मजबूत सतून। मैं बताता हूँ, हमारे आला अदब और अखलाक से मुज़य्यन मशरक़ी मुआशरे में मजहब और उसके अहकाम की क्या हैसियत है। उसकी ज़ब्त और इस्तकामत की तनाबें यहाँ टूटी थीं। तहम्मुल और रवादारी का मादा यहीं ख़त्म हुआ था, जो उसकी इश्तियाल के शोले दहकाती आंखों से साफ आया था, जो आइनादारी में कोई रियायत से काम नहीं लेने वाली थी। हमारे दोगले मुआशरती मुआशरे में मजहब और उसके अहकाम की हैसियत एक फेमस ब्रांड के लेबल जैसी है, जिसे लगाकर आप कचरा भी बेचेंगे तो हमारी अहमक आवाम सवाल नहीं करेगी, बल्कि सर आंखों पर बिठाएगी, क्योंकि उसकी अकल पर तो बड़े ब्रांड का लेबल लगा है नहीं, जिसे वो खुशी खुशी बिना पसो पेश इस्तेमाल कर ले। उसने तनफ़ुर से हंकारा भरा। हाज़रीन ने पहलू बदला। बाहर लॉन की तरफ शहबाज और शिराज उस्मानी के साथ गए ज़फ़र और कदीर जिलानी भी आवाज़ें सुनकर हैरान परेशान से हॉल में दाखिल हुए। माजरा समझने की कोशिश करने लगे फिर। और हमारे मुआशरे के ठेकेदार यही कर रहे हैं, कभी अपने मफाद के लिए तो कभी फ़कत अपनी झूठी अना की तस्कीन के लिए, अपनी गंदी घटिया पस्त ज़हनियत को साबित करने के लिए मजहब और शरई अहकाम को तोड़ मरोड़ कर दलील के तौर पर पेश कर देते हैं, और हमारी आवाम वहीं ढेर हो जाती है, जिन्हें मजहबी अहकाम सिर्फ ज़रूरत के वक्त और ज़रूरत के मवाक़े की याद आते हैं, जिनके लिए शरीयत इस्लाम सिर्फ ब्रांडेड लेबल है, जिसे लगा कर ये अपनी दकियानूसी बोसीदा रिवायात की तिजारत करते हुए, लोगों की नफ्सियात के साथ खेलते हुए अपनी तंग नज़री की अंधी बाजारी चलाते हैं। इन्हें 4 शादियों की सुन्नत याद होती है, लेकिन दिन में 5 मरतबा बाकायदा याद करवाए जाने वाले फ़र्ज़ की अदायगी के लिए इनके कदम मस्जिद की तरफ नहीं उठते। जो बीवी बहू के मैके से आने वाले ऑन डिमांड जहेज़ को बड़े फ़ख्र से बेगैरतों की तरह समेटते हुए शर्म महसूस नहीं करते, लेकिन बीवी को हक महर, बेटी को जायदाद में शरई हक देते हुए उनके हाथ पैर फूल जाते हैं, और फिर ये सो कॉल्ड हमारा ख़ानदान, हमारी रिवायात, हमारे बुजुर्गान का विरसा कार्ड खेलने लग जाता है। इस मुआशरे और इसके कवानीन की पासदारी और भलाई की बात कर रही हैं ना आप? इश्तियाल से अंगारे उगल रही निगाह उसने दोनों फुफियों पर गाड़ी, जो उसके जारिहाना रूप से खाइफ लबों को जुम्बिश तक देने से कासिर थी। वो मशरकी मुआशरा जिसकी नज़रों में एक इंडिपेंडेंट औरत नाकाबिले एतबार है, बदचलन है,
आवारा है, बद किरदार है, मगरबी अतवार अपनाने वाली मुआशरे की नासूर और न जाने क्या क्या है। दूसरी तरफ बेवा और तलाक याफ्ता के उकदे सानी पर भी उन्हें एतराज़ है, उस पर मज़े का उड़ाना है, कहीं किरदार कशी करके तो कहीं रस्म व रिवाज की दुहाई देकर उनका जीना दूभर करना। वो मशरकी मुआशरा जहाँ मर्द बीवी को तलाक देने या फौत होने के बाद उकदे सानी कर ले तो उसे ज़रूरत कहकर तस्लीम कर लिया जाता है, लेकिन औरत ऐसा करे तो वो बेगैरत, बेहया, बेवफा है। ये कैसा लॉजिक है? एक तरफ सेल्फ मेड वुमेन आपके लिए नाकाबिले एतबार है, आपके मुताबिक हर घर की दहलीज पर मर्दाना चप्पल की मौजूदगी हमारे मशरकी मुआशरे के लिए लाजिम मलजूम है। फिर आप लोग तलाक याफ्ता और बेवा के उगदे सानी को जल्द अज जल्द यकीनी बनाने का बेड़ा उठाने की बजाय उसे मायूब साबित करने पर क्यों तुले हुए हैं? अगर अकेली औरत को मुआशरा गैर महफूज और नाकाबिले एतबार मानता है तो अपने बयान पर टिका क्यों नहीं रहता? क्यों लोग तलाक याफ्ता से निकाह करते हुए कतराते हैं, उन्हें ऐसे ट्रीट करते हैं गोया उन्हें अछूत की बीमारी लग गई हो? क्यों? अल्लाह हमें 10 मौके दे सकता है, हम इंसान एक मौका देते हुए इस कदर तंगदस्ती से काम क्यों लेते हैं, जिस वजह से तलाक को दाग बना कर दिया गया। एक औरत घुट घुट कर एक रिश्ते में मरना गवारा करती है, लेकिन तलाक का दाग नहीं लगाती कि मुआशरा उसे कबूल नहीं करेगा। बेवा से और बेवा की शादी को हमारे मज़हब में अफजल शुमार किया जाता है, फिर हमारे लिए मज़हब से ऊपर क्यों दुनियादारी हो गई? ये किस तरह के डिप्लोमेटिक लॉजिक्स हैं आप लोगों के, जो बस खुद ही के हक में दुरुस्त हैं, जो किसी मजलूम की पूरी ज़िंदगी को जहन्नुम बना देती है? खुदारा समझें, बेवा बेवा होती है, वो चाहे किसी भी बहुत बड़े कबीले के जागीरदार की बेवा हो या किसी मामूली से चौकीदार की। किसी को हक नहीं कि वो अपनी रिवायतों की जंजीर उसके पैरों में डालकर उसकी ज़िंदगी अजीरन कर दे। जब मज़हब खुद उन्हें इजाज़त देता है खुद को मौका देने का, उसका झाग उड़ाता लहजा अब कुछ पस्त हुआ, ताहम तने अजलात हनूज दहक रहे थे। मैं कोई पक्का सच्चा मुसलमान नहीं हूँ, खामियां मेरे खमीर में भी शायद खूबियों से कई ज़्यादा हैं, बहुत सी बुराइयों में मुलविस रह चुका हूँ, तकरीबन दुनिया के सारे तरक्की याफ्ता मुल्क घूम चुका हूँ। आप लोग बिल्कुल दुरुस्त हैं, मगरबी मुआशरे में हमारी सोच से ज़्यादा बुराइयाँ आम हैं। अखलाक, आदाब, शर्म व हया वहाँ बिल्कुल नापैद है जो हमारे मशरकी मुआशरे का हुस्न है, हमें औरों से जुदा करता है। लेकिन एक चीज़ उनकी अच्छी है, वो बुराई अपनी ज़िम्मेदारी पर करते हैं। वो अपने मज़हब को बदनाम नहीं करते, वो दुनिया की नज़र में अपने किरदार को शफाफ साबित करने के लिए मज़हब के दामन पर छींटे नहीं उछालते। वो बहादुरों की तरह अपने अमल और रद्द अमल की ज़िम्मेदारी खुद लेते हैं। हमारे बुज़दिल मुआशरे की तरह अपना उल्लू सीधा करने के लिए दुनिया भर में अपने दीन, अपने अकायद को तंग नज़र और कुफस ज़दा नहीं बनाते। उसके तासुब ज़दा चेहरे में हसरत की थकन सिमट आई थी। मुझे इतना ही कहना था, बाकी मेरी आपकी रिवायात, आबा व अजदाद के विरसे से कोई दुश्मनी नहीं। मेरा एक छोटा सा बयान आप सबकी दिल आज़ारी, ज़हनी और आसाबी तनाव का बाइस बना, मुझे उसका मलाल है। बोझल अंदाज में अपनी बात समेटता वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और खामोशी से बोझल और नादिम फिज़ा में अपनी भारी कदमों की धमक से इर्तियाश पैदा करता निकलता चला गया था।